Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. On behalf of the bodies of trustees and our beloved founder, revered Dr. Vishwanath Karad sir, let me welcome with my bottom of hearts the chief guest of today's program, Madam Neelamtai Gore, the Deputy Chairman of Legislative Council of Maharashtra. I also wish to welcome another important chief guest who is presiding this function, Professor Kultar Singh Sandwan Sahab, who is the Honorable Speaker for Punjab Assembly. Thank you so much for your participation, sir. And of course, C.P. Joshi Sahab, the former Speaker of Rajasthan Assembly, the former Minister, and so many other important positions he has decorated in Congress Party and particularly in the Rajasthan government, at the national government. Thank you so much, C.P. Joshi Sahab, for supporting this cause. My Vice Chancellor, Dr. Chitnis, Professor Girisan, the Director of this institution, Professor Pebisetti, Professor Parimal Maya Sulakar, Senior Researcher, and of course my staff, students, the former Commissioner Ramnath Sonavneji, the students of School of Government students, of course they are the focal point today, they're for the 20th batch, but other journalism school students, I was told some of the law school students are also there. So I welcome all the students also for this very prestigious, historic 20th commencement ceremony of MIT School of Government. What a wonderful day, my friends. I have no words to express my satisfaction and my emotions. I must say that this journey 20 years back it was started, and of course, we have just entered into 20th year. Another 1 year, this batch will go in the second year, and by that time, I think we'll be completing the 20 years of our journey. So that time, we will have very important ceremony, maybe in the same campus or maybe in Delhi, I don't know. As per academic, my team members and everybody, we wish to decide that how we want to do that particular ceremony. So, thank you so much, all the three important pillars sitting here and patiently just now seeing this film, and sometime before what our Vice Chancellor also said, Professor Parimal, you both have said so beautifully this already, and I think the enough momentum and enough message, the very purpose and the objective of this school, the educated youth must come in public life, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, बड़ा सिंपल मैसेज पिछले 20 साल से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से इस संस्था ने देने की कोशिश की है, और हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 140 करोड़ की आबादी और इतना बड़ा देश, और हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम कर रही है। खाली MIT या कोई और भी प्राइवेट संस्थान देश में हो सकते उससे काम नहीं होगा, लेकिन NGOs है, सामाजिक संस्थाएं है, तो so much is happening. And just 40 years before, when I was young, 10 years of 8 years of age, that time just 35 years of our independence. We just last year celebrated 75 years of independence. 40 साल पहले का भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, 40 साल पहले का भारत का पॉपुलेशन, सो मेनी 40 साल पहले के भारत के इश्यूज, प्रॉब्लम्स, और आज के भी प्रॉब्लम्स, आज के इश्यूज, उस वक्त की डेवलपमेंट, आज की डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के बीच में जब हमारी ये लाइफ जर्नी चलती रहती है, एक जनरेशन आती है, दूसरी जनरेशन, फिर उसका भागडोर लेके हम सरकारें बनती है, आती है, जाती है। वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा सुंदर एक हमने भाषण भी सुना है पार्लियामेंट में। लेकिन आज का दिन मैं समझता हूँ कि जो स्कूल से भी जोशी सर में लोग, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लोग उस वक्त हंसे थे, और बहुत सारे लोग नीलमता ये भी देख रहे थे कि ये कब बंद हो जाएगा। पहले 3, 4, 6, 7 साल तक तो बहुत सारा एकेडेमिया के साथ भी आर्गुमेंट होते थे। प्रोफेसर परिमल एंड माई टीम मेंबर्स विल एग्री कि ये क्या, वी हैव अ पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम है, सोशल साइंसेस प्रोग्राम है, वी हैव सो मेनी, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का स्कूल ये क्या अलग बनाया है ये मिस्टर राहुल कराड। एंड naturally, I must remember today I'm emotional with Mr. T.N. Seshanji, who supported this idea, who was a brand ambassador, who was the first chairman of this school. Because of his name, we could propagate this idea nationally. I have to humbly communicate to each one of you. And of course, lastly, the blessings of and the greatest trust what our beloved founder,
who is sitting in the middle, he created this edifice where 80,000 students today take the education in these institutions. Many of you may not knowing the 20th batch, all the medical colleges, hospitals, and all the institutions. So he supported, he trusted, along with the other trustees, and he said, Rahul, this is an important idea and we have to foster it. Just don't look at anybody. People will just keep talking. People will just saying all these things, but don't get nervous and you have to move. So I'm grateful to him also, not just as a father, but formally as a founder of this very prestigious, important MIT group of institutions, MIT World Peace University. So मैं शेषन साहब का आज मन से हृदय से उनका भी यहाँ पे मैं याद करता हूँ। तो उस वक़्त इसकी तरफ जिस तरीके से लोगों ने देखा था कुलतार साहब की ये आइडिया पॉलिटिकल लीडरशिप की कि भाई ये राजनीति में तो इतने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ बाहुबली किसका काम चलता है, यहाँ पैसे की बात होती है, यहाँ so many other factors work in public life, और ये क्या बात बोल रहे हैं मिस्टर कराड़ा, ट्रेनिंग और एजुकेशन और कैसे क्या होगा ये। लेकिन मैं उस वक्त भी ये बोलता था और मुझे उस वक्त भी सवाल पूछा था, मतलब जिनका बहुत दिल से हृदय से आदरणीय कराड़ सर बहुत रिस्पेक्ट करते, वसंत दादा पाटिल जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने इस संस्था का पॉलिसी मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो आर्टिकल आदरणीय कराड़ सर ने लिखा था प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में होने चाहिए, उस आर्टिकल को उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने वो लीड लिया और वो पॉलिसी शेपिंग में डॉक्टर कराड़ सर की मदद से और भी कुछ शिक्षाविदों की मदद से ये प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का ये पूरा ये बना आगे। तो मैं वसंत दादा जी का भी मुझे याद आ रहा है कि वसंत दादा पाटिल जी चौथी एजुकेटेड थे। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा भाई इतना अच्छा उन्होंने काम किया, एजुकेशन का क्या मतलब है। मैं इतना ही बोलता था, पत्रकार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने अभी तक 200 के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे भारत में ली होंगी इस पर्टिकुलर विषय में, और लोग मुझे ये सवाल, तो मैंने इतना ही बोलता अगर वसंत दादा पाटिल जी अगर इस कोर्स में आते तो वेदर इट वुड हैव बीन एडिशन और डिलीशन, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज अल्टीमेटली द गवर्नमेंट मशीनरी, द एग्जीक्यूटिव विंग, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स, यू people create the laws, and after creation of laws there is an executive wing, there are judiciary, there is these 4 pillars of democracy, of course the fourth is our media. But in this whole exercise अगर हमारे नेताओं ने इस तरीके से एजुकेशन लिया तो उससे एडिशन ही होगा, ब्यूरोक्रेसी को और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे कुछ सीनियर लोगों ने मुझे बोला कि मिस्टर कराड़ इस स्कूल का फ़ायदा ये होगा बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज लाइक अ हॉर्स and the politicians are like riders. If the rider is weak, the bureaucracy will throw you away. You can't function. And we see those many examples. कई बार मैं देखता हूँ कि हाँ बोल दिया है हमने, काम आगे बढ़ते ही नहीं है। But कुछ decisive leaders, Nilamtai, you are known for that. Nilamtai Goreji is a very, very strong woman. The way she has communicated and the way, so I think, and many such other your colleagues, I think. So we have to see that कि अगर if our leaders are equipped with the knowledge, मुझे खुशी है कि सीपी जोशी साहब आप यू आर PhD होल्डर, यू आर फिलोसॉफी फंडामेंटल साइंसेस में आपने डिग्री लिया है, कितनी सारी 6, 7, 8 डिग्रियाँ आपने ली है। सो और उनके जैसी व्यक्ति, तो मुझे हमेशा आश्चर्य में जब भी आपको देखता हूँ कि भाई राजनीति में थोड़ा सा मुझे ये लगता है, मतलब 2 बार आप जानते हैं कि लास्ट 2 इलेक्शंस ही लॉस्ट because of whatever, but he said Rahul with the conviction, my party trusted me because the kind of situation, जो भी कोई राजस्थान से होंगे आप उनके बारे में जानते होंगे और बाकी भी लोग उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स राजनीति में मुझे लगता है बहुत यूनिक तरीके से उनका जीवन का जो कार्य है, और इस तरीके से आप लोगों से अपेक्षा है कि एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, एक अनयूजुअल पॉलिटिक्स हम सोच सकते हैं क्या। 3 घंटे से मैं सीपी जोशी साहब और कुलतार सिंह साहब के साथ में सुबह से चर्चा हमारी हुई कि राजनीति, भारत की राजनीति और चैलेंजेस राहुल क्या क्या है इंटरनली। मतलब ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एजुकेशन, बट वी हैव आवर ओन चैलेंजेस एंड वी नेविगेट थ्रू दिस एंड वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग द गुड सिटीजन्स, द गुड पॉलिटिशियंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो मैं उनको सिंपल चीज़ें पूछ रहा था कि मतलब हम इसकी, मुझे तो बड़ा हॉरिफाइंग लगता है सीपी सर कि 140 करोड़ की आबादी के बारे में कोई सोच रहा है क्या। तो ये बड़ा आइडियलिस्टिक सिचुएशन में बोल रहा हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा के सोच सकती है कि भाई हमें पॉपुलेशन के ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं दूसरी सिचुएशन में लास्ट टाइम मेरे एक बार भाषण में बोला था कि ये फ्री बीज का कल्चर, कि भाई सोशल सिक्योरिटी नेट के बहाने ये जो भी गरीब लोगों को स्कीमें दी जाती है, कैन इट बी पॉसिबल नीलमताई कि भाई 1 साल पहले इलेक्शन से कुछ भी स्कीम कोई भी सरकार डिक्लेयर, पहले 4 साल खूब भर के करो, और बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक कंसेंसस बन जाए
कि हम इस तरीके की स्कीम, और गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट से तय कर ले कि हमें कोई भी नई स्कीम इस तरीके से, वी विल नॉट लॉन्च एनी स्कीम 1 year बिफोर द इलेक्शन। ऐसी सिंपल चीज़ें मुझे दिखती है एज एक्टिव सिटीजन। पॉपुलेशन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सच अ हॉरिफाइंग सिचुएशन। देयर इज वन क्लास ऑफ पीपल हु आर वेरी रिच, वन क्लास इज हैव देयर ओन चैलेंजेस, but with the mobile machine, I want to tell you, all the students particularly, you guys need to think on these lines, because of the social media and all these things, world has come so close. सबसे गरीब आदमी भी 5-star होटल अंदर से कैसे होता है, they know everything. और ये जो गैप है, उनके भी एस्पिरेशंस है, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, मुझे भी ये बंगला चाहिए, मुझे भी बाकी ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये हम एक तरफ लोगों के एस्पिरेशन भी बढ़ा रहे हैं कुलतार साहब, और ये मानसिकता, तो ये अगर हमने उनका फुलफिल नहीं किया, जॉब्स के बारे में की बात, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात, तो मुझे लगता है कि देश में, बहुत सारे देशों में क्या क्या होता है हमने देखा है। भारत का अपना ढांचा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से आए, लेकिन राइट टाइम में हमने कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ मुद्दों के ऊपर एक कॉमन कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टियों का होने की ज़रूरत है। तो वो बात आप लोगों को सिखाने की, यहाँ पे इस संस्था से आप जब निकलेंगे, तो नहीं तो कई बार मैंने देखा कि भाई सर, वो प्रैक्टिकल लाइफ तो बड़ा अलग है, वहाँ पे तो वोटर को पैसा देना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमें आने वाले समय में कहीं ना कहीं, तो ये चर्चा कहाँ से शुरू होगी, तो शिक्षण संस्थान ही है जहाँ से ये चर्चा शुरू हो सकती है दोस्तों। और चर्चा नहीं खाली, मतलब मुझे लगता है हम सोल्यूशन दे सकते हैं। सीपी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि सजेस्ट मी द सोल्यूशन, कि भाई प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने चर्चा की, कि टेल मी समथिंग वेरी फंडा, कि दीज आर द थिंग्स। सो इसलिए राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन अगली बार जब होगा, 2-2.5 हज़ार MLA पहली बार भारत के इतिहास में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, मुंबई में गैदर हुए, और किस तरीके से वो सब कुछ बना, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे। लेकिन इस पूरे कॉज को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र से नीलमताई, आपका मैं मन से हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक एक्टिव सिटीजन के नाते, कि भाई इस संस्था को मुझे रिकग्नाइज करना है, ये काम अच्छा है। और पहले दिन से आपने कितनी चिट्ठियाँ लिखी, कुलतार साहब आपने कितनी चिट्ठियाँ लिखी, कितने लोगों को फ़ोन लगाए, सीपी साहब आपकी भावना का भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कि पूरे सभी भारत के विधानसभा अध्यक्षों का एक चंद 5-6 विधानसभा अध्यक्ष मुझे जो इनिशियली जिन्होंने सपोर्ट किया, सतीश महाना जी का भी मैं नाम लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जिस तरीके से इस विषय में एकत्रित आके चर्चा हुई, और पूरे भारत के 2000 MLA हम इकट्ठा कर पाए, तो उसी बात को आगे ले जाने के लिए आप सब लोगों का स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और महीना भर हुआ, 15-20 दिन पहले आप लोग सब यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, बट इस दिशा में आप सभी स्टूडेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्टूडेंट, बट स्कूल ऑफ लॉ के भी बच्चे यहाँ बैठे, और बाकी के भी बच्चे, आप सब लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यही विजन बनाने के लिए फाउंडर साहब ने, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर ने, आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद, हम मॉर्निंग में वहाँ पे थे, हम एक इंस्पिरेशन, एवरी टाइम वी गो, दो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वी गो देयर, वी गेट एनर्जाइज, वी गेट इंस्पायर्ड, कि व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, कि वी हैव टू गो टुगेदर एज अ ह्यूमैनिटी। सबके रास्ते अलग हो सकते हैं, डेस्टिनेशन एक ही है, भगवान के पास ही जाना है सबको, सबके रास्ते अलग है। एक सिंपल मैसेज डॉक्टर कराड़ सर ने, बट सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट एंड carry forward in our life mission. It is very, very difficult, my dear friends, and that is a whole very purpose of World Peace syllabus and so many ideas at MIT World Peace University we are trying to inculcate. My dear students, मैं आज के दिन में TN सेशन साहब का नाम भी है, मैंने यहाँ पे बोला, मुझे नटवर सिंह जी की भी याद आती है, उन्होंने भी सर मुझे इस विषय के लिए बहुत समर्थन और सपोर्ट दिया था। अडवाणी जी का तो क्या कहना, मैं उन्होंने 11 सेशन लगभग दिए, और अडवाणी जी मुझे इतना ही बोले, राहुल 20 बच्चे हो 30 बच्चे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आऊँगा लेक्चर, और प्रॉपर लेक्चरर के नाते आते थे। नीलमताई, आई थिंक यू ऑल्सो हैव टेकन 4-5-6 सेशंस सो फार इन दिस स्कूल, और मेनी अदर मेंबर्स हैव सपोर्टेड दिस आइडिया। एंड मैं भैरव सिंह शेखावत साहब का भी आज यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर याद करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ माई फादर्स अफेक्शन विद भैरव सिंह जी एंड दिग्विजय सिंह साहब। उस वक्त उन्होंने द फर्स्ट स्कूल, व्हाट फोटो यू सॉ जस्ट नाउ, की 2005 में, आप इमेजिन कर सकते हैं, 20 साल ये छोटी जर्नी, 2 तप निकल गए, कि जिस विषय के ऊपर मतलब हम क्यूरियस थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या इंजीनियरिंग कॉलेज चलाओ, मेडिकल कॉलेज, ये क्या पॉलिटिकल लीडरशिप का, ये क्या करना है। लेकिन आवर फाउंडर, माय फादर, ही ऑलवेज टॉट, राहुल, एजुकेशन इज नॉट फॉर बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस प्रिंसिपल हो सकता है उसमें, बट इट इज़ नॉट अ बिजनेस। सो वी हैव टू सी दैट ऑल द टाइम आवर सोसाइटी इज़ अ वेरी यूनिक सोसाइटी. We can't afford to think like US and some other Western developed countries in the world.
but we have our own model. So how do we connect all the degree programs with the society? How do we, so that you guys can come forward to transform the society and you will solve the societal problems. So with that spirit, MIT World Peace University is trying to work, my dear friends. So without taking too long, I think I have spoken quite a long in this journey, but I think I felt that the thing should be on the record, and I have to express that this journey has given the birth to all these ideas of Bharatiya Chhatra Sansad, Rashtriya Sarpanch Sansad, National Women's Parliament, and many such important ideas. So we take it ahead. कुलतार साहब, तो आपसे, नीलम ताई से, सबसे ये अपेक्षा है कि सभी विधानसभाओं में इस तरीके के लीडरशिप के स्कूल निकले। ये बात मैं पहली बार आपसे मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। कुछ विधानसभाओं के साथ ऑलरेडी MOU भी हो चुके हैं। आज के इस भाषण में मैं अपेक्षा भी कर रहा हूँ, नीलम ताई, कल आप भी मुझे पूछ रहे थे कि कुछ तो आप घोषणा इसके बारे में, और भी कुछ लोगों ने इसके बारे में किया है कि हम इस तरीके से विधानसभाओं में करेंगे। मैं सिंपल मॉडल बोला कि पूरे भारत के सभी विधानसभाओं में एक लीडरशिप का स्कूल, पॉलिटिकल लीडरशिप का, रीजनल लैंग्वेजेस में अगर निकले तो भारत में करीबन 30 विधानसभाओं में 3,000 लोग भारत का नेतृत्व तैयार करने के लिए, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट पीपल will pass out, and we will be able to do a very beautifully talent search across the country, and those people can be penetrated in our democratic setup of our country, and they can work for the nation building. So please think on many such ideas. The youth parliament idea, I have a feeling that every MLA in the country, imagine 4,000 MLAs in the country, they are doing the youth parliaments for sensitizing the youth, what all can happen through that exercise. And तभी जाके मुझे लगता है कि ये जो मैं कुछ एक थोड़ा सा मेरा कंसर्न मैंने 140 करोड़ की आबादी की बात बोली, और भी कुछ चीज़ें मैंने बोली, मुझे लगता है कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने जागरूक होकर, पॉलिटिशियंस ने भी जागरूक होकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट फोर्स इन द कंट्री हु कैन कंट्रोल दिस नेशन, who can really, the private sector, they have their own role, but I think we have such unorganized sectors, various such sectors are there in the country, and who can control? So only the political parties and political leaders. So you all people, whoever non-political other programs, students also need to think how politics is important for the societal transformation. So please carry the message, and once again I welcome all the 3 respected guests for today's program, and see you soon. Jai Hind, Jai Bharat.